Assalamu alaikum everyone. This is your teacher Dr. Noor Mohammed and you are attending a lecture of A2 level biology lecture A2 level chemistry lecture series. मेरे बच्चों आज आपको ये लेक्चर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर दिया जा रहा है and it is the last lecture of this chapter, transition elements. As you all know that we have started this chapter I think 4 classes back 2 weeks ago, and I've told you that this chapter is a very important chapter and a detailed chapter as compared to the previous ones, and we have divided the chapter into multiple sections. We started the chapter from the introduction, then we talked about some reasoning part. उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है इसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया विच वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉमेनक्लेचर और हाउ टू नेम कॉम्प्लेक्सेस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया एंड उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की. एंड देन वी मूव टू something called color formation, and before that color formation we learned how to draw the shapes of different degenerated orbitals, and then we moved to the concept of color formation. I have taken one full extended class on color formation so that I can discover everything जो कि color formation से related है. In the last class you attended guys, we discussed the topic of shapes of complexes, and I have shown you that in your syllabus what you need to remember or learn that the complexes can be of 4 shapes. It could have linear shape, it could have square planar shape, it could have tetrahedral shape, or it could have octahedral shape. And you can tell this by just looking at the coordination number. And I've told you many times that coordination number is the number of dative bond which is formed by a ligand with the central metal atom. So it is not the number written in the complex. फॉर एग्जाम्पल जो हमने बात की थी, लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ कि PT इज कंबाइनिंग विद H2O ट्वाइस एंड 4 NH3 4 times plus 2. So here you can see is that water will form 2 bonds and ammonia will form 4 bonds. So the coordination number we had here was 6. ठीक है. But in the next example where I say that platinum is working like this, ठीक है. So what would be the coordination number here? अब यहाँ पर आप शायद कहेंगे 3 होगा, which would be wrong because we know that chlorine is a monodentate ligand, so it will only form 2 bonds, but ethylene diamine is a bidentate ligand. So at a time one molecule of ethylene diamine will form 2 bonds, and therefore 2 bonds will be formed by ethylene and diamine, and 2 bonds will be formed by chlorine. Therefore the coordination number here will not be 3, it will be 4. So we have discussed this in the previous lecture, so I don't think कि अब कोई परेशानी आपको इसमें होगी. Then we have also talked about मेरे बच्चे that different types of isomerism. अगर आपको याद हो, जस्ट क्विकली मैं रिव्यू कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर. मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा पीछे से रिव्यू कर दें. आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो आई हैव टोल्ड यू दैट इन दीज कॉम्प्लेक्सेस वी एनकाउंटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ isomerism? 2 types. Number 1 was cis-trans isomerism, and then number 2 was optical isomerism. So basically हमने कहा था कि इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है. रिमेंबर हमने क्या कहा था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है. ठीक है बच्चे. सिस-ट्रांस एंड ऑप्टिकल दो टाइप के आइसोमेरिज्म थे. सिस-ट्रांस के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि सिस-ट्रांस 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस में नजर आता है. नंबर 1 स्क्वायर प्लेनर एंड नंबर 2 octahedral. And I have told you that when octahedral complex will show cis-trans isomerism and which square planar will show cis-trans isomerism. ये आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया. तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस पार्ट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ कि किस में होता है और किस में नहीं होता. Whereas the last part we discussed in the last lecture was about optical isomerism, and it is only shown by
it is only shown by which isomers, which complexes? Can you recall that? It is also shown by octahedral complexes. Octahedral complexes में होता है. अब जो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, दे मे थिंक कि भाई यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल सिस्टॉन्स भी दिखा रहा है और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल जो है ऑप्टिकल भी दिखा रहा है. ये क्या है? तो इसमें जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया है, दे नो दैट आई हैव टोल्ड यू द कंडीशंस हियर. इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू द कंडीशन लाइक 4+2 एंड 2+2 वाली कंडीशन. ठीक है, जस्ट रिवाइजिंग द हिंट ऑफ दैट नॉलेज. ऑब्वियसली अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि पहले लास्ट लेक्चर सुनिए एंड देन लिसन टू दिस लेक्चर so that you can connect this information. Whereas for octahedral complexes to show optical isomerism, this particular the particular condition was of bidentate ligands, 3 bidentate ligands. 3 bidentate ligands जो हैं, एक जैसे 3 bidentate ligands अगर attached हैं to the central metal atom, तो they are going to exhibit optical isomerism. ठीक है, तो that was the detail. फिर मैंने आपको इसको drawing भी सिखाई थी. I showed you कि how to draw this structure. ठीक है, अगर आपको just quickly मैं याद दिलाऊं तो yes, here you can see it. I have shown you how to draw the optical isomers in case of octahedral complex. बहरहाल, so that was the discussion we had in the last lecture. Now it's time to move to the last topic of this chapter, and the last topic of this chapter is beta ligand displacement the topic which we are going to cover is ligand displacement reactions. Ligand displacement reactions. ठीक है, that's the thing we are going to discuss today. So beta, just to build up the concept of the topic, it's really important to understand right now that we all know that ligands are the species which donates their valence electron, donates the lone pair into the vacant d orbitals of the transition element, and they form a coordinate or dative bond with the transition metal element. Now, as you all know, I've told this in the last class as well, that when ligands are surrounding the d block metal, obviously जब आप surround करोगे तो we have a limited space. Space is not unlimited, we have a limited space. जब ligand किसी d metal के element को surround करेगा तो the space is limited. We don't have the unlimited space over there. And that is why it is important to understand that how they are going to behave. So let's say that Fe is a ligand, Fe is a central metal atom, and atoms or ligands are surrounding Fe. Ligands are surrounding Fe. So listen carefully, that if the size of the ligand is small, if the size of the ligand is small, then only maximum 6 ligands can surround metal atom. मैक्सिमम कितने लाइगेंड सिर्फ सराउंड कर सकते हैं? 6 ligands कैन सराउंड सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, एंड देयरफॉर जब मैक्सिमम 6 ऑक्यूपाई करेंगे तो आपको मालूम है जब 6 ligands ऑक्यूपाई करते हैं तो द शेप बिकम्स ऑटोमेटिकली द ऑक्टाहेड्रल शेप. ठीक है, वेयर एज अगर लाइगेंड ज़्यादा है, ये मैंने फॉर बताया फॉर स्मॉलर लाइगेंड्स, ये स्मॉलर लाइगेंड्स हैं. स्मॉलर लाइगेंड्स जो हैं दे कैन ऑक्यूपाई 6 पोजीशन लाइक वाटर. वाटर इज वन ऑफ द स्मॉलर लाइगेंड, छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो इट कैन ऑक्यूपाई 6 प्लेसेस सराउंडिंग. या लेट्स से NH3 अगेन अ स्मॉलर लाइगेंड. ठीक है बच्चों, बट
ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट लार्जर लाइगेंड्स, ठीक है, अगर थोड़ी सी हम लार्जर लाइगेंड्स की तरफ आ जाएं, जिसमें वन ऑफ द की एग्जांपल जो आपके सिलेबस में आ जाती है वो आ जाती है लार्जर लाइगेंड्स में क्लोरीन की, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर लाइगेंड is bigger in size plus due to its negative polarity when, let's say this is iron here and chlorine are surrounding iron, so due to their polarity and their huge size, अगर आप atomic size को draw करें तो what we see कि they maximum 4 chlorines can only accommodate। आप समझ रहे हो कि मैक्सिमम जो इनकी, यानी अगर मैं समझाऊँ आपको इसको कि लेट्स से ये क्लोरीन का एटम है, लेट्स से ये क्लोरीन का एक एटम है, ये क्लोरीन का दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ओनली व्हाट वी सी इज कि ओनली 4 लाइगेंड्स विल मैनेज टू सराउंड द आयरन, नॉट 6। So what's the conclusion of the whole discussion is that if the ligand molecule is small, it can maximum occupy 6 places, and if the ligand is weaker then is larger, it will occupy only 4 position। अच्छा, जाहिर है कि ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो सकती है, बट आपके सिलेबस में दैट इन डेप्थ डिस्कशन इज नॉट इंक्लूडेड। तो वी विल बी टेकिंग एग्जाम्पल्स स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर देम, तो फिर आपको उससे रिलेटेड फिर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। सो नाउ पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि स्मॉलर लाइगेंड्स अलग नंबर ऑफ पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि लार्जर लाइगेंड्स, यहां मैं लिख देता हूं, दे ऑक्यूपाई 4 पोजीशंस ओनली, जो जिसकी वजह से आइदर दे विल बी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहीड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है तुम लोगों ने। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ लाइगेंड। स्टेबिलिटी ऑफ लाइगेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लाइगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, कौन सा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीकर है। बात समझ में आ रही है? ये आपको देखना पड़ेगा पहले से। अब लिसन केयरफुली, देखो भाई, जो लाइगेंड वीकर होगा, इट्स द रूल जो आप ओ लेवल से ए लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। अगर लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें एक वीकर लाइगेंड है एंड आप उसका रिएक्शन करा रहे हैं एक ऐसे कंपाउंड से जिसमें एक ऐसा लाइगेंड मौजूद है जो कि स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू जो कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी मौजूद है, तो ऑब्वियसली अ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड विल डिस्प्लेस द वीकर लाइगेंड। एक स्ट्रॉन्गर लाइगेंड क्या करेगा? वीकर लाइगेंड को डिस्प्लेस कर देगा। वेयर एज अगर आप एक वीकर लाइगेंड लेकर आए हो और यू वांट टू जो है ना वो डिस्प्लेस अ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड, दैट वुड नॉट बी इजी। व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्गर लाइगेंड इतना इजीली अपना कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं होने देगा, बिकॉज उसने स्टेबल बॉन्ड बनाए होंगे, उसने मजबूत बॉन्ड बनाए होंगे एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। सो इट मीन्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रॉन्गर लाइगेंड, यानी ये स्टेटमेंट याद हो कि जो स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स होते हैं दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, जबकि जो वीकर लाइगेंड्स होते हैं दे फॉर्म less stable complexes. The rule is quite simple here. Rule is quite simple here that अगर स्ट्रॉन्गर लाइगेंड ने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया है तो वीकर लाइगेंड आकर उस कॉम्प्लेक्स को इतना आसानी, मैं ये नहीं कह रहा कि तोड़ ही नहीं सकता, बट इतना आसानी से नहीं। इसकी मैं एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दूंगा जो कि आपकी अपनी बायोलॉजिकल एग्जांपल है।
ठीक है. एंड जस्ट लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल. यू ऑल नो, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन is a protein molecule that contains iron, and when I say that it contains iron, it means iron is a transition element. iron मौजूद है. And normally you know that oxygen is the ligand that binds to hemoglobin. Oxygen is a ligand that binds to hemoglobin to form HbO8. Is that correct? Oxygen is the ligand that forms this. ठीक है. But you know this very well that if HbO8, which is oxyhemoglobin, is allowed to react with carbon monoxide, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, तो आप अच्छे से जानते हो कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन, the efficiency of carbon monoxide to bind with hemoglobin is much higher, 200 times higher than जो efficiency of oxygen. क्या मतलब कि carbon monoxide in this example is a very stronger ligand as compared to oxygen. So when carbon monoxide gets available, then due to its strong nature, strong strength, ठीक है, it easily displaces oxygen from hemoglobin and form another compound, another complex which we call carboxyhemoglobin, whereas oxygen gets set free. So what we just saw here, that a stronger ligand, which is this one, has displaced a weaker ligand. ठीक है ना? Is this clear? तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस हमें नजर आ रहा है, इजीली कर लिया. अच्छा, अगर इस प्रोसेस को रिवर्स में करना हो हमें, अब जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड होगा हीमोग्लोबिन के साथ, वो एक स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां पर हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिल गया है. ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दिस वन. अब लेट्स सपोज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास मौजूद है and I am allowing it to react with oxygen. So as we know that oxygen is a weaker ligand as compared to carbon monoxide, so it means that oxygen will not be able to displace carbon monoxide from hemoglobin. As it is a weaker ligand, and it's a stronger ligand or stable complex, so when we allow oxygen to displace carbon monoxide, जैसे पहले ligand displacement हुआ था, तो what we see normally this reaction does not occur. No reaction under normal कंडीशन. ठीक है जी. बट वी नो कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए, तो व्हाट वी डू इज वी सप्लाई ऑक्सीजन, नंबर वन, प्योर at high partial pressure. Then it displaces CO by mass effect. That's really important बेटा. क्या कहा मैंने कि बायोलॉजिकली, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बट we can do that by using lot of oxygen, pure oxygen, and at high partial pressure. In that case it will be able to displace carbon monoxide from
from the compound, from the complex, but it is not due to the fact कि ऑक्सीजन की stability reactivity बढ़ गई है, ऑक्सीजन stronger ligand हो गया. No, the reason here is that by mass effect it is able to displace carbon monoxide from the compound. So it means जो stability constant है, stability constant, we use the symbol K stab here, K stab, ठीक है ना. Stability constant, it's I should write it here, K stab, which is basically log Kc. क्या मतलब Kc? अब लेट्स सपोज अभी मैंने रिएक्शन लिखा था ना कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड को कंबाइन कराएं एंड लेट्स कंसिडर दैट एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वी गेट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट, इज इट अ रिवर्सिबल रिएक्शन? यस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड अगर आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला यहाँ पर Kc का, तो इट विल बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट वुड बी COHB प्लस O नॉट प्लस CaHB and O2 and HbO8 and CO. As we know that in this reaction carbon monoxide is stronger ligand, so the more stability constant, अगर आप इसका log ले लेते हो ना, log Kc, we write it as stability constant. So the stability constant for this ligand would be much higher, and therefore because it is formed by stronger ligand, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ तो ज़्यादा शिफ्ट रहेगा इक्विलिब्रियम, लेकिन इसका जब आप ऑक्सीजन से इसको वापस लाना चाहेंगे तो इट वुड नॉट बी दैट इजी. तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिस कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा होगा वो स्टे करेगा. खुलासा ये, स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर हायर होगा, वैल्यू गिवन होगी, तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. आपको डाटा दिया जा सकता है जनरली. अच्छा एक बात और जनरली बताऊं मैं आपको. जनरली व्हाट वी सी इज कि मैं चलो डाटा दे ही देता हूं. मोनोडेंटेट, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, मोनोडेंटेट जो लाइगेंड्स होते हैं लाइक क्लोराइड, लाइक NH3, ठीक है ना, they have usually lower stability constants. अच्छा, in this example it is very clear that which will be forming stronger complexes. जी बेटा, कौन सा स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाएगा? एक क्लोराइड की वैल्यू 5.6 है और NH3 की वैल्यू 13.2 है, यानी NH3 के कॉम्प्लेक्स की वैल्यू जो है वो 13.2 बनती है. इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स NH3 वाला होगा दैट विल बी मच स्टेबल एज कम्पेयर टू क्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्स के. बट द कॉन्सेप्ट इज कि मोनोडेंटेट से ज़्यादा जो स्टेबल लाइगेंड्स फॉर्म करते हैं दे आर बाइडेंटेड वंस. फॉर एग्जाम्पल बाइडेंटेड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 1, 2, ये मैंने बुक से लिए हैं सारी एग्जांपल. डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इट्स बाइडेंटेड लाइगेंड. तो आप इसका जब केस टैब देखते हैं तो दैट इज 25, मच हायर, ऑलमोस्ट डबल देन द मोनोडेंटेड लाइगेंड. तो अब अगर कहीं पर बाइडेंटेड लाइगेंड आ रहा है तो ऑब्वियसली इट वुड बी मच स्ट्रॉन्गर लाइगेंड एंड इट विल इजीली डिस्प्लेस अ वीकर लाइगेंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स की, लाइक दिस वन हियर, जैसे कि हमारे पास है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट. तो यहाँ पर भी हमें जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ही नज़र आती है. ऑब्वियसली इट इज़ इन दिस केस इट इज़ नॉट
as high as this example of bidentate, but obviously it is much higher than monodentate ligands. तो monodentate ligands के comparison में the values of K stabs are much higher for bi and पॉलीडेंटेट लाइगेंड. इट मीन्स कि अगर कहीं पर मोनोडेंटेट लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और उसकी जगह पर कोई बायोडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंड रिएक्ट कर रहा है, तो इट विल बी ईजिली एबल टू रिमूव दैट कॉम्प्लेक्स और ब्रेक दैट कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना, बात उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आ गई होगी. अच्छा, इसकी एक और पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे दूँ. ये एग्जाम में आई हुई है, ये एग्जाम्पल नोट्स में मेरे आपको मिल जाएगी. ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है पूरे रेफरेंस के साथ. सही, इसमें एक डाटा गिवन होता है. अच्छा, ये दो तरह से आ सकता है क्योंकि एग्जाम्पल इज अब जो मैं कराने लगा हूँ यही स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन की. आपको समझ में आ गया ना. लेट्स गो बैक टू दिस रिएक्शन. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई के स्टेप जिसका ज़्यादा होगा, यानी कि के स्टेप जैसे कि हमने कहा कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसका ज़्यादा होगा, तो दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी much stronger, so it will form very easily because forward therefore we can say that reaction will be directed in forward shift, whereas backward shift इसमें लाना बहुत difficult होगा. ठीक है, चलो. Now we are going to take an example of अच्छा, ये सवाल भी आ सकता है, पूरा आपको पूरा पूछा भी जा सकता है, और ये आधी बात बताई भी जा सकती है और आधी बात जो है वो आपसे पूछी भी जा सकती है. तो मैं आपको एज अ होल टॉपिक बता देता हूँ. ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने सिनेरियो समझना है, बिकॉज आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा. रेड कलर इज ऑब्जर्व, एक मिनट रुक जाइए. रेड कलर इज ऑब्जर्व, ठीक है बेटा, व्हेन पोटेशियम थायोसाइनेट KSCN, सही से लिख देते हैं. व्हेन पोटेशियम थायोसाइनेट एक्वस, ठीक है, इज एडेड टू FeCl4 कॉम्प्लेक्स, इज एडेड to FeCl4 complex, but no such color was added, no such color was observed. ये पहला कंक्लूजन हो गया. ये इससे कंक्लूजन निकालेंगे और याद भी रखेंगे कि मतलब क्या हुआ. नो सच कलर is observed when same potassium, एक मिनट रुक जाए जरा, एक थोड़ा सा पकड़ लो. no such color is observed when potassium thiocyanate aqueous, the same compound, is added into another complex which is FeCN6. अब देखो दो इन्फॉर्मेशन. अच्छा, इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है, ये नहीं कि सिर्फ यही एग्जाम्पल, इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है. अब इन दो इन्फॉर्मेशन से क्या आप रिलेटिव स्टेबिलिटीज डिटरमाइन कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, और फिर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. बेटा, रेड कलर इज ऑब्जर्व जब FeCl4 में आपने KSCN डाला. ठीक है, इट मीन्स के जो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा कि जब when KSCN is added to the solution of FeCl4, Cl ligands are replaced by the stronger ligand. अगर वो कलर चेंज हुआ है इसका मतलब है they are replaced by stronger ligands as CN. ठीक है, and therefore a red complex is observed due to formation of more stable complex. बात समझ में आ रही है.
पहले क्या कलर था ये बताया हुआ नहीं है, तो आप सिंपल क्या कहोगे, अगर पहले का कलर बताया होता तो आप हो सकता है कहते हैं कि भाई कलर चेंज यहाँ से इससे होगा। तो क्या मतलब हुआ, वी कैन से दिस दैट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स था FeCl4, जब आपने इसमें डाला KSCN तो इट हैज़ रिप्लेस ड्यू टू द फैक्ट कि स्ट्रॉन्गर लाइगेंड होगा, चूंकि कलर चेंज आ रहा है, वी शुड लेबल इट है स्ट्रॉन्गर लाइगेंड एज कम्पेयर टू दिस इट इज़ अ वीकर लाइगेंड। सही है बच्चों, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ गोइंग टू डिस्प्लेस दिस, एंड द कॉम्प्लेक्स विच इज़ फॉर्म हियर इज FeSCN। Is that clear? 2+। ठीक है, अच्छा ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आपको याद रखना होगा। अभी के लिए समझे कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया और जो 4Cl हैं वो ऐसे अलग हो गए, तो इज दिस रिएक्शन इज इन फेवर ऑफ, मतलब इज इट द फॉरवर्ड शिफ्ट in the equilibrium or backward shift in the equilibrium? Obviously the forward shift, because we from the observation can conclude that SCN will be a stronger ligand and it will displace a weaker ligand. But on the other hand, if the same thing is tried with another complex which is FeCN6 and KSCN is tried to be added in this, no color change is observed। यानी आप जो सोच रहे थे कि यहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए FeSCN 2+ and 6CN should get removed और KCN, तो ये रिएक्शन चूंकि यहाँ पर ये वीकर लाइगेंड है as compared to this and this is a stronger ligand, जैसे कि information से पता चल रहा है, तो this displacement will not be allowed and what we see that more stable complex will stay as it is। रिएक्शन जो है वो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर यही रिएक्शन आप यूं कर रहे होते कि भाई CN के जरिए रिप्लेस करना चाह रहे होते SCN को, तो this reaction would have occurred because CN is a stronger ligand as compared to SCN thiocyanate। आप समझ लो नहीं समझ लो, तो आपसे एक्सप्लेनेशन जब पूछेगा तो आप जो है बताओगे। दूसरा फिर आप पहले वाली की एक्सप्लेनेशन मैंने बताई कि KSCN इज एडेड, तो क्या हुआ, Cl ligands are replaced by SCN ligands which are showing कि Cl ligands are weaker than SCN, where जबकि दूसरे में when KSCN यानी potassium thionyl is added to solution of the complex, no such red color is observed because CN ligands are stronger than SCN and so are not replaced। सही है जी, तो इसका मतलब है Fe जो ये वाला कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होना था थायोसाइनेट वाला, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या आप रिलेटिव स्टेबिलिटीज बता सकते हैं तीनों कॉम्प्लेक्स की? 3 तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, तो अगर आप रिलेटिव स्टेबिलिटी बता पाएं तो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स अगर आप डिड्यूस कर पाओ तो इट इज FeCN6। देन उससे कम कौन है? FeSCN, एंड जो सबसे कम है विच वॉज रिप्लेस्ड बाय इवन SCN इज FeCl4। इस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ तो मैंने पूरी एक एग्जाम्पल ही करा दी आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हाउ वी अप्रोच टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको नोट करो बेटा, शाबाश। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ वन ऑफ इट्स काइंड, जहाँ पर आपको समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी ऑफ लाइगेंड्स मैटर्स अ लॉट, और उससे आप लाइगेंड्स के रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड कर सकते हैं। इन जनरल मोनोडेंटेट लाइगेंड्स जो हैं वो सबसे वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू बाई एंड पॉलीडेंटेट, एंड जो मोनोडेंटेट है उसके अंदर फिर अलग अलग कंपैरिजन।
वो फिर मैं उसमें कुछ जो कॉमन लाइगेंड्स आपके सिलेबस में आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब या तो आपको ऑब्जर्वेशन, जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ऑब्जर्वेशन गिवन थी, उस ऑब्जर्वेशन से आपने डिसाइड किया कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्गर लाइगेंड है, कौन सा वीकर लाइगेंड है। तो या तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन गिवन हो, या फिर क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए जो कॉमन लाइगेंड्स हैं उनके बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड्स, जो कॉमन लाइगेंड्स हैं ऑब्वियसली। तो जो कॉमन लाइगेंड्स हैं जो आपको मेरे ख्याल काम आएंगे याद रखने का, उसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद करें कलर फॉर्मेशन मैंने बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइगेंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते, उससे स्ट्रॉन्ग वाटर है, उससे स्ट्रॉन्ग क्लोराइड है, उससे स्ट्रॉन्ग जो है वो NH3 है। दीज आर द 4 मोर और मोस्ट कॉमन लाइगेंड जिनके रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका ऑर्डर अगर आप याद रख लें तो आपको ही बेनिफिट होगा। Otherwise, I've told you कि in order to deduce the correct reactivity or stability of the ligand, आपको या तो information दी जाएगी, and that information will tell you that which ligand is stable. ठीक है ना? तो now using this information, we will discuss few reactions इंशाल्लाह ताला, and then हम आगे चलेंगे।